मैं छुट्टी पर हूँ. I'm on vacation. أنا في الإجازة. I am في الإجازة, on vacation. उर्दू में मैं في الإجازة, मैं छुट्टी पर हूँ. हम छुट्टियों से वापस आ रहे हैं. We are coming back from vacation. نحن راجعين من الإجازة. نحن, we are راجعين, coming back, من, from, الإجازة, the holidays, the vacation, the leave. उर्दू, نحن, हम, راجعين, लौट रहे हैं, من الإجازة, छुट्टी से. min मतलब से. मैं छुट्टी पर था. I was on vacation. أنا كنت في الإجازة. English, I كنت, was, في الإجازة, on vacation. उर्दू में मैं كنت, था, मैं था, في الإجازة, छुट्टी में. मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं. मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं. My vacation is over. To say that in Arabic, أنا خلصت الإجازة. I خلصت, finished, الإجازة, the vacation. उर्दू में मैं خلصت, ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ. الإجازة, छुट्टियाँ, मैंने छुट्टियाँ गुजार दी हैं, मैंने छुट्टियाँ ख़त्म कर दी हैं. मैं अभी छुट्टी से वापस आया हूँ. Just now I came back from vacation. توني رديت من الإجازة. توني, this is how they say in UAE and the neighboring countries. इस तरह ये जो मैं भी कहने जा रहा हूँ ये है अल्फाज इमारात के और अतराफ़ के ममालिक के. توني, just now, رديت, got back. Just now I got back. من الإجازة, from the vacation. उर्दू में तौनी, अभी तो, رديت, मैं लौटा हूँ. من الإجازة, छुट्टी से, मैं अभी तो लौटा हूँ छुट्टी से. आप ये कहने की कोशिश कर रहा है. If you are residing in Saudi and the neighboring countries, that part of the world, अगर आप सऊदी और अताफ में रहते हैं, then they will say, आप वो यूँ कहते हैं, الحين رديت. الحين, अभी के लिए कहते हैं الحين. They say الحين for now. So you have to fit الحين there and replacing توني. तो आप الحين कहेंगे, तौनी निकाल देंगे, तो الحين رديت من الإجازة बन जाएगा. कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? Going for how many days? Now here, the person is not mentioned. Is that you're saying for yourself, or you're asking it to the second person or the third person? These words in Arabic can be transferred, can be changed using all the three persons. यहाँ पर कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? आया कि आप पूछ रहे हैं दूसरे के बारे में कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, या वो कितने के लिए जा रहा है, या मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ. तो ये अल्फाज आप तीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे करेंगे मैं बताता हूँ. पहले हम इसकी अरबी सीखते हैं. Let's learn the Arabic of this phrase and then we'll go on further. حق كم يوم رايح? حق means for. كم يوم, how many days. رايح, going. For how many days? Going. Okay? So we will now put one person into test. First person, second person, and the third person in 3 different slides to know how to add the first person with this phrase, and then the second person, and then the third person. We'll do it now in a while. अब हम यूँ करेंगे कि इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे इस जुमले को. इसमें पहला शख्स मतलब मैं, मुतकल्लिम कहते हैं उर्दू में, जो बात कर रहा है, वो अपने लिए ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल करेगा. फिर दूसरा बंदा
जिससे आप मुखातिब होते हैं, जिससे बात करते हैं, उसके लिए अल्फाज कैसे इस्तेमाल होंगे। और जो तीसरा शख्स है जो यहाँ अभी गुफ्तगू के दौरान नहीं है, यानी शामिल नहीं गुफ्तगू में, उसे कहते हैं तीसरा बंदा, इंग्लिश में, उर्दू में और अरबी में कहते हैं गायब। उसके लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, यानी किसी ने आपसे पूछा भाई आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं क्या मैं कितने के लिए जा रहा हूँ, मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। इस तरह के भी हालात बनते हैं कि भाई आपको ये सवाल करना पड़ता है। तो वो सवाल किस तरह करना है ये सीखते हैं। आई एम गोइंग फॉर हाउ मेनी डेज। लेट्स सपोज आउट ऑफ सरप्राइज somebody said you are going on a business trip. You're surprised and you say I'm going for how many days. So in that context, there are situations where you have to say I'm going for how many days. So the Arabic is حق كم يوم أنا رايح. You can observe it's only one word before رايح changes it for you. This phrase, this question is for you now because you have put in yourself there. That's أنا. حق كم يوم, for how many days. أنا رايح, am I going. उर्दू में حق كم يوم, कितने दिनों के लिए. أنا رايح, मैं जा रहा हूँ. भाई मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ आप ये पूछ रहे हैं. तो इस सवाल के अंदर आपने आपको कैसे शामिल किया. रायह से पहले आपने अना जोड़ दिया यहाँ पर. ठीक है, सीख लिया. अब सीखते हैं दूसरे शख्स के बारे में. लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड पर्सन नाउ. आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं. यू आर गोइंग फॉर हाउ मेनी डेज. सो दिस इज हाउ दे चेंज द क्वेश्चन. इस तरह से ये सवाल तब्दील होता है कि आपने अपने को कहाँ फिट किया यहाँ पर, दूसरे बंदे को, मुखातिब को. حق كم يوم أنت رايح. حق كم يوم, for how many days. أنت, you are, رايح, going. उर्दू में حق كم يوم, कितने दिन के लिए. أنت رايح, आप जा रहे हैं. ठीक है. अब सीखते हैं तीसरे बंदे के बारे में. Let's learn about the third person now. वो कितने दिनों के लिए जा रहा है. He is going for how many days. حق كم يوم, هو رايح. and also حق كم يوم هو رايح. okay, I think you have understood it now. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ना कहाँ फिट करना है. एक और मिसाल लेंगे. एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, going for a week. now let's learn how to fit first person, second person and third person into this phrase. अब हम ये सीखते हैं कि एक हफ्ते के जा रहे हैं. यहाँ पर हम अपने आप को जो मुतकल्लिम है उसे कैसे फिट करना है, जो मुखातिब है उसे कैसे फिट करना है, और जो तीसरा शख्स है उसे कैसे फिट करना है. पहले इसकी अरबी सीख लें. लेट्स लर्न फर्स्ट द अरबिक ऑफ दिस फ्रेज. रायह हक इसबुअ. रायह हक इसबुअ. रायह गोइंग फॉर, हक इसबुअ फॉर 1 week. उर्दू में रायह जा रहे हैं, हक इसबुअ एक हफ्ते के लिए. मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ. I am going for 1 week. Now let's fit ourselves there in this phrase. أنا رايح حق أسبوع. I'm going for 1 week. मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ. इस तरह से मुतकल्लिम को फिट किया गया है. Now for the second person, मुखातिब को फिट करते हैं. आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं. You are going for a week. And the Arabic is أنت رايح حق أسبوع. أنت رايح حق أسبوع. Now I'm giving you a chance here to make the statement for the third person. Try it out. What should be that? And let's see if that's correct or not in the upcoming slide. अब आप कोशिश करें थोड़ा सा जहन को जहन पे जोर दें कि तीसरे शख्स के लिए जो कि गायब है उसके लिए क्या इस्तेमाल करना होगा, क्या तब्दीली लानी होगी इसमें. वो एक हफ्ते के लिए जा रहा है. ही इज गोइंग फॉर अ वीक एंड द चेंज विल बी हु. जस्ट अ सिंगल वर्ड, एक ही लफ्ज का तबादला होगा जो कि वो है. हुआ रायह हक इसबुअ. एंड ऑल्सो हु रायह हक इसबुअ. बोथ आर सेम, दोनों ही ठीक है. हुआ कहते हैं सऊदी अरब, उस तरफ के ममालिक जो अरब वहाँ इस्तेमाल होता है. और हु
इमारात और इस साइड के जो ममालिक हैं अरब, वहाँ इस्तेमाल होता है, दोनों ठीक हैं. आप कब सफ़र पर जाएंगे? When will you travel? متى بتسافر؟ متى بتسافر؟ متى when بتسافر will you travel. उर्दू में متى कब بتسافر आप सफ़र पर जाएंगे.